So far in the fourth unit we had seen which is disorders and health problems of a child. We had seen failure to thrive in infancy. Today we will see diarrhea. Everybody might be familiar with the term diarrhea, I guess. So many times you all have studied about diarrhea. Diarrhea is what? It has been derived from the Greek word which means flowing through. Flowing through means diarrhea में क्या हो रहा है? Excessive watery stool हो रहा है ना? उसको कहाँ से मिला है वो? From a Greek word which is known as flowing through. Which the word is flowing through. किस में common है? Infant की death में most of the time common है. Infancy is कितने ईयर की एज ग्रुप को इन्फ्लुएंसी में इंक्लूड करते हैं? आफ्टर 28 days to 1 year of age, and it is the second leading cause of death in children those who are under 5 years of age. कैसे डायरिया हो जाएगा बेबी को? हाउ इट जिसको भी डायरिया हो रहा है कैसे होंगे? इफ एनीबडीज बेबी, किसी के भी बॉडी में, इन्फेंट है, चाइल्ड है, किसी के भी बॉडी में फ्लूइड की कमी है तब डायरिया है, या तो फिर एक्सेसिवली वाटरी डायरिया क्यों हो रहे हैं? लॉस ऑफ फ्लूइड्स थ्रू डायरिया. डायरिया की वजह से खूब सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, खूब सारे फ्लूइड एक्सक्रीट आउट हो जा रहे हैं बॉडी से, जिसके वजह में आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है. इट इज ट्रीटेबल ऑल्सो एंड प्रिवेंटेबल ऑल्सो. Coming on to the definition which is given by WHO, which is World Health Organization. It says diarrhea is defined as passage of 3 or more loose stools per day or passing more stools than the normal for the particular age of the child. डायरिया क्या है? passage of 3 or more stools per day. एक दिन में 3 से भी ज्यादा हो रहे हैं और जितना नॉर्मल डेज में नहीं हो रहा है और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के चाइल्ड के लिए नॉर्मल नहीं है. दैट इज टर्म्ड एज डायरिया. डेफिनेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू WHO. There is accordingly. Now see differences here. What is this written? Clearly mentioned passage of 3 or more loose stools. This is as in general. Later on we'll be seeing the classification. It is basically classified into 3. First is on the basis of duration. Second is on the basis of clinical presentation. Third is on the basis of physiology. So 3 के भी अपने अपनी सब points है. That is, first is on the basis of duration. We have acute diarrhea. सेकेंड इज क्रॉनिक डायरिया. ये किसके अंडर में है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. अक्यूट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया. ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वी हैड अक्यूट वाटरी डायरिया एंड अक्यूट ब्लडी डायरिया. एक है वाटरी, एक है ब्लडी. एक में ब्लड है, एक में वाटर है. ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी. अंडर दैट वी हैव 5 सब क्लासिफिकेशन which says first is secretory diarrhea, osmotic diarrhea, exudative diarrhea, motility related diarrhea and inflammatory diarrhea. ये सारी classification is important. Diarrhea will come in your examinations. In the next examination, whenever you will be sitting, it will definitely come, and especially the classification, etiology, sign and symptoms. So first is on the basis of duration. As the name suggests, acute. Acute means what? Akansha. Acute means what? मैम जो कम मैम समय आकांक्षा जो भी है वो बोल सकते हैं. मैम एक्यूट सडनली सडन नहीं होता है. विच लास्ट फॉर सर्टेन डेज. दैट इज, अगर आप डायरिया का बात करेंगे तो अक्यूट डायरिया जिसमें एपिसोड्स ऑफ डायरिया विच इज लास्टिंग फॉर 14 days or less than 14 days. Less than 14 days which will be included under acute diarrhea. Whereas chronic diarrhea में क्या होंगे? Just इसकी opposite. जो 14 days से ज़्यादा last कर रहे हैं that will be under chronic diarrhea. Understood? Acute diarrhea वो डायरिया है जिसमें less than 14 days की involvement है. Infant को डायरिया हो रही है और उसकी episode है which is lasting less than 14 days. Whereas chronic diarrhea which is in infant, it is occurring and the episode is more than 14 days. Next, coming on to on the basis of clinical presentation. दिख कैसे रहे हैं डायरिया, कैसे हो रहे हैं? First is acute watery diarrhea. First of all, watery क्यों होगा? वाटरी डायरिया हो रही है एंड दिस टाइप कब तक होगी? 7 hours से लेकर कुछ दिन तक.
सेवरल आवर्स है, जैसे कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक अकर हो रहे हैं, तो दैट विल बी acute watery diarrhea. I will repeat myself. Acute watery diarrhea क्या है? This type of diarrhea which will is the diarrhea which will be lasting for several hours or days. घंटों से लेकर दिनों तक चले जा रहे हैं, दैट इज acute watery diarrhea में आएंगे. acute bloody diarrhea है जिसके अंदर ब्लड है स्टूल में, दैट विल किसी भी डायरिया में जो भी डायरिया हो रहा है उसमें इधर ब्लड का प्रेजेंस है, उसमें म्यूकस हो भी सकती है, म्यूकस नहीं भी हो सकती है, विच कैन लीड टू डिसेंट्री. दैट विल बी अंडर acute bloody diarrhea. These were two classification. The third classification is on the basis of physiology. On the physiology, where the very first one is, we have 5 under this. First is secretory diarrhea. Secretory means secrete word कहाँ से आई है? Secrete word किधर से आई है हमें? Secretory. See now, lately आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं क्लास लेंगे या फिर आपको एक्सेप्ट करेंगे? सेक्रेशन से है। हाँ, सिक्रीट आया, सिक्रीशन आया, सिक्रीटरी आया है सिक्रीट वर्ड से. सिक्रीट वर्ड का मतलब क्या होती है? टू प्रोड्यूस और टू डिस्चार्ज, या तो प्रोडक्शन हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है. सिक्रीटरी डायरिया की मतलब क्या होती है? जब एक्टिव सिक्रीशंस इंक्रीज हो जा रहे हैं या फिर अब्जॉर्प्शन में कमी हो रही है, जब भी क्या हो रहा है, बॉडी सिक्रीट कर रही है इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर इंटेस्टाइन. जब बॉडी क्या कर रही है? इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट कर रही है, यानी कि प्रोड्यूस कर रही है या फिर डिस्चार्ज कर रही है इनसाइड द बॉडी, दैट विल बी अंडर सिक्रीटरी फेज. सेकेंड इज ऑस्मोटिक डायरिया. ऑस्मोटिक मतलब जब टू मच ऑफ वाटर कहाँ जा रहा है? बॉवल के अंदर जा रहा है, खूब सारा पानी. दैट मीन्स ऑस्मोटिक डायरिया किसी को भी, किसी भी बेबी को कब होगी? जब खूब सारा वाटर इज बीन ड्रॉन इनटू दी बाउल, बाउल में खूब सारा वाटर आ जा रहा है. कैसे आ रहा है? अगर बच्चा कभी भी एक्सेसिव सॉल्ट सोल्यूशन पी ले रहा है या फिर एक्सेसिवली शुगरी सोल्यूशन पी ले रहा है, तो उसीलिए क्या होगा? वो सारा पानी कलेक्ट होकर विच विल बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी एंड विच विल बी सेंट इनटू द बाउल, सो वो हो जाएगी ऑस्मोटिक डायरिया. नेक्स्ट इज एक्सुडेटिव डायरिया. एक्सुडेटिव मतलब एक्सुडेट, एक्सुडेट से आया है. एक्सुडेट मतलब, एक्सुडेटेड डायरिया मतलब उस जिसमें प्रेजेंस ऑफ पस भी है और ब्लड भी है इनटू द स्टूल, दैट इज एक्सुडेटिव डायरिया. Basically, it is what exudative diarrhea is associated with the damage to the intestinal mucosal layers, जिसकी वजह से क्या होगी? रिलीज होगा या फिर oozing of the blood or else mucus from the particular membrane or from the particular area. आप बस इतना याद रख दो कि एक्सुडेटिव डायरिया मीन्स उसमें प्रेजेंस ऑफ ब्लड और पस कलेक्शन रहती है. और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज बेसिकली एसोसिएटेड किस वजह से? जिसका डैमेज हो रही है. डैमेज किसकी हो रही है हमारी बॉडी में? किस चीज की डैमेज हो रही है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जिसकी वजह से जब कोई भी चीज डैमेज हो रहा है तो एंड रिजल्ट क्या होगी? उसमें से ब्लड निकलेगा, तो म्यूकस और ब्लड निकलेगा. नेक्स्ट इज मोटिलिटी रिलेटेड. एवरी टाइम प्लीज ऐसे आप मत करो. इफ अगर आप ऐसे करेंगे कि रिमूव हो गए, हम रिमूव हो गया, हाफ ऑफ द टाइम आई विल बी एडमिटिंग यू पीपल ओनली, तो प्लीज डोंट रिपीट दिस. इफ यू आर रिमूव, हेलो, you all can hear me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ, so please listen. आपको समझ गया? if you all are not coming on time, please आप मत आओ, otherwise it's a disturbance to the other students as well. Okay. Next is motility related. Motility related means, मोटिलिटी मतलब क्या होती है? मूवमेंट. सो मूवमेंट से रिलेटेड, अगर बहुत ज्यादा रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड हो रही है थ्रू द इंटेस्टाइन, दैट इज नोन एज हाइपर मोटिलिटी. अगर बहुत एक्टिव मूवमेंट्स हो रही है इन द बॉडी, जिसका मतलब क्या है? फूड आपने जैसे ही फूड खाया है, तुरंत के तुरंत जीआई ट्रैक में चले गए हैं. साइमल्टेनियसली क्या होगा? जीआई में जाने के बाद जल्दी से मोशन हो गए, मूवमेंट जल्दी से हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? इंटेस्टाइन के पास कम टाइम मिलेगी ना फिर
फूड कम टाइम तक स्टमक में स्टोर रहेंगे, इंटेस्टाइन में अगर कम टाइम तक स्टोर रहेंगे और जल्दी से निकल जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, the particular intestine will have very less time to absorb the nutrients and water in the body, क्यों, तो वो absorb ही नहीं कर पाएंगे, इस वजह से सारे nutrients भी निकल जाएंगे बॉडी से, that is motility related. next is inflammatory diarrhea. inflammatory as in inflammation की वजह से हो गया, जब कभी भी mucosal lining को कोई भी डैमेज हो गई है जिसकी वजह से फ्लूइड होल्ड करने के लिए और अब्जॉर्ब करने के लिए, फ्लूइड अब्जॉर्ब करने के लिए डिक्रीज हो गई है कैपेसिटी और एबिलिटी डिक्रीज हो गई है, दैट विल बी अंडर इन्फ्लेमेटरी डायरिया. अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, then only we will move on to the etiology. Any confusion if you have, you can ask please. Till here any confusion you all have? मैम इन्फ्लेमेशन को एक बार फिर से कर दो. हाँ, 1 minute. Abhinandan, you have any issue? Hello? Abhinandan is still there or left? Yes, ma'am. You have any doubt? No, ma'am. Okay. इन्फ्लेमेटरी डायरिया, एज यू सेड, इन्फ्लेमेटरी डायरिया क्या है, इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई डायरिया हो गई है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी डैमेज है अगर म्यूकस लाइनिंग को, उसकी वजह से क्या होगा, एबिलिटी कम, म्यूकस लाइनिंग जहाँ से काम हो रहा है वहां पर ही कुछ प्रॉब्लम है, वहीं डैमेज हो गई, तो क्या होगी, जो अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड है वो स्लो हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं, स्लो हो जाएगा. स्लो होने की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन और जितनी सारी चीजें अब्जॉर्ब होनी थी, स्पेशली फ्लूइड्स, न्यूट्रिएंट्स, वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है अच्छे तरह जिससे अब्जॉर्ब होनी है. दैट इज व्हाई इट विल बी लीडिंग टू इन्फ्लेमेटरी डायरिया. और ये किसकी वजह से होता है, बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट. और अगर किसी बेबीज को प्रॉब्लम है, यू विल सी किसी बेबी को आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो उनको भी ये हो सकती है इन्फ्लेमेटरी डायरिया. एनी डाउट? Clear? Moving on to the etiology. Etiology means causes. First, there are multiple causes. First, we will see the 5 main important etiologies. Those are infection, drugs, dietary causes, surgical conditions, and miscellaneous causes. First, we'll moving on to infection, that is bacterial. It can be bacteria, virus, parasites, fungi. Bacteria से कौन कौन bacteria है? Just remember E. coli, Shigella, Salmonella and Staphylococcus. कौन कौन से हैं? Shigella, E. coli, Salmonella and Staphylococcus. These all will be under infections, under that bacterial infection में कौन कौन है? Shigella, E. coli, Salmonella and Staphylococcus. Coming on to virus, virus will be enterovirus, rotavirus, influenza virus and adenovirus. That is entero है और adeno है, rota है and influenza है, ये सारी virus will be under virus. Parasites will be amoeba, you can remember, and entamoeba histolytica, that you can remember. What is parasites में? Amoeba and entamoeba histolytica. Fungi में you can remember like albicans, Candida albicans you can remember. Next is drugs. This was all about infection. Under that we had seen bacterial, viral, parasitic and fungi. Next is drugs. Drugs में antibiotics supplementation is being given, as well as antibiotics के साथ iron supplementations are also being given. इसको देखते हैं कि डायरिया में ये सारा देना है. नेक्स्ट इज डाइटरी कॉजेज. डाइटरी में फूड पॉइजनिंग की वजह से, एलर्जीज के वजह से और एल्स ओवर ईटिंग के वजह से डायरिया हो जा रहे हैं. ठीक है, किस किस की वजह से हो रहा है? फूड पॉइजनिंग, फूड एलर्जीज और ओवर ईटिंग. अंडर दिस फर्स्ट वी हैव सीन इन्फेक्शन. बैक्टीरिया में किस किस की वजह से हो रहे हैं? वायरस में किस किस की वजह से हो रहे हैं? पैरासाइट एंड फंगाई. ड्रग्स में
एंटीबायोटिक्स और आयरन सप्लीमेंटेशन कोई अगर ज़्यादा ले रहे हैं उसके वजह से, जितना डिजायर्ड अमाउंट है उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे उस वजह से हो रहे हैं। देन डाइटरी कॉजेज में फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया हो सकते हैं, इधर उधर खा लिए बेबीज ने और एल्स कंटेमिनेटेड फूड खा लिए तब हो जाएंगे। फूड एलर्जीज, अगर किसी को एलर्जिक है और फिर भी वो दे दिए उससे हो जाएंगे। ओवर ईटिंग, खूब जितना खाना है उससे खूब सारा खा लिया है उससे हो जाएंगे। और एल्स किससे हो सकती है? डाइटरी में। स्टेल फूड अगर किसी ने खा लिया, स्टेल मीन्स व्हाट? STALE, स्टेल मीन्स व्हाट? बहुत टाइम से रखा हुआ खाना, अनकवर्ड खाना, पुराना खाना खाने की वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्जिकल कंडीशन। सर्जिकल में पॉलिप्स है किसी को, पॉलिप्स इज व्हाट? कोई भी अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो गई है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर पॉलिप्स। नेक्स्ट सर्जिकल अगर कोई कंडीशन है उसकी वजह से हो सकते हैं डायरिया इज अपेंडिकुलर एब्सेस। अपेंडिकुलर एब्सेस मीन्स पस, अपेंडिकुलर में अपेंडिक्स पे। तो पस की कलेक्शन जो किस पे हो रही है? अपेंडिक्स पे, जो कि इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है। पहले क्या होगी? कलेक्शन ऑफ पस होगी, जिसकी वजह से क्या होगी? टिश्यू की नेक्रोसिस होने लगेगी अलॉन्ग विद इन्फेक्शन, उसकी वजह से जो अपेंडिक्स है वो बड़ी हो जाएंगे। सो इट विल बी अपेंडिकुलर एब्सेस। नेक्स्ट इज मिसलेनियस कॉजेज। मिसलेनियस कॉजेज में होंगे आपके MAS, दैट इज मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रही है जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी ले रहे हैं। देन नेक्स्ट इज अब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, एब्डोमेन की टीबी हो गई है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर बेबी को है जिसकी वजह से अगेन इट कैन लीड टू डायरिया। एनी कंफ्यूजन इन etiology? You all can ask. One minute, ड्रग्स में let किसकी me, वजह से होती है? one second. शालिनी, यस मैम, ड्रग्स में मैम किसकी हाँ, वजह से होती है? 1 minute. Either excessive intake of antibiotics या तो फिर आयरन सप्लीमेंट्स, कोई भी चीज एक्सेसिव विल बी इफेक्टिव, राइट? कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है। सो अगर ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स ले लिए या फिर आयरन सप्लीमेंटेशन बेबी को दे दिए, एंटीबायोटिक्स दे दिए, तो इट कैन लीड टू डायरिया। एनी अदर डाउट? शालिनी, यू हैव एनी अदर डाउट? नो मैम, नो मैम, थैंक यू मैम। Okay, my pleasure. Next is predisposing factors. Predisposing factors में 5 again factors we have. That is, first is age, season, socio-economic status, dietary factors and teething. फर्स्ट इज एज। फ्रीक्वेंटली कौन से बच्चों को डायरिया ज्यादा हो रहा है? जो अंडर 2 years ऑफ एज के बच्चे हैं। ज्यादातर पीक इंसिडेंस, मतलब सबसे ज्यादा किसमें, उनमें से भी किसमें सबसे ज्यादा हो रही है? दोज विल बी 6 to 9 months ऑफ बेबीज और इन्फेंट्स। पहले तो कॉमन किस में है? अंडर 2 years ऑफ एज। लेकिन पीक इंसिडेंस किस में सबसे ज्यादा किसको हो सकती है? 6 to 9, बिटवीन 6 to 9 months ऑफ इन्फेंट्स। सीजन कब है? समर एंड रेनी सीजन में ज्यादा कॉमन है। इट, आई एम नॉट सेइंग समर और रेनी में ही हो रही है, आई एम सेइंग इट इज कॉमन इन समर एंड रेनी सीजन एज वेल। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सबसे ज्यादा किस में होगा? जो लोग पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ज्यादातर उनमें कॉमन है। या फिर जो इन्वायरमेंट, पुअर सैनिटरी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ही साफ नहीं है, उन लोगों को हो सकती है। Then dietary factors, higher in artificially fed children. This is an important point. Artificially fed children. क्यों artificially? पहली बात तो artificially fed children कौन है? मतलब जो भी मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट फीड उनको कोई और फीड मिल रही है, विच आई टोल्ड यू ऑल इन द क्लास, टॉप फीड मिल रहा है, विच यू कॉल इन हॉस्पिटल टॉप फीड मिल रहा है, और एल्स आर्टिफिशियल फीड मिल रहा है। उन बच्चों को ज्यादा हो सकती है। क्यों? बिकॉज more nutrients are there comparatively. artificial feed और breast feed से मदर के मिल्क में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बेबी को, सारा न्यूट्रिएंट्स वहां से मिल रहा है, और आर्टिफिशियल फीड में कम मिल रही है, जिसके वजह से बेबीज को कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट एंडिंग अप इनटू डायरिया। टीथनिंग, टीथनिंग क्या है? टीथ आना। तो टीथ आना, teething, which means doesn't directly lead to what you call diarrhea. Indirectly डायरिया की हाई कॉज है टीथनिंग की वजह। क्यों? बिकॉज जब टीथ आ रहे हैं बेबीज के तो क्या होंगे? टूथ इरप्शन के टाइम में दे फील इचीनेस इन द टूथ एरिया में, जो गम एरिया वहाँ इचीनेस होगा, प्लस
वो कोई भी डर्टी ऑब्जेक्ट मुंह में डाल रहे हैं, हैंड्स कहीं पर भी टच कर कर दे आर नॉट अवेयर कि हाथ धोना है और फिर मुंह में डालना है, सो दे आर पुटिंग इट इन द माउथ, बिकॉज ऑफ दैट दैट सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो they are ending up with diarrhea. Any confusion in predisposing factors? We had seen age, season, socioeconomic status, dietary factors and teething. If any confusion, ask. Shalini, you got? Anybody else Yes, who ma'am. have not got? Ask. Okay. Next, you'll see clinical features and assessment. Under that, clinical features of diarrhea, first of all, it depends upon the severity. Three conditions is can there be? We'll see mild diarrhea, moderate diarrhea and severe diarrhea. Coming on to the first, which is mild diarrhea. माइल्ड डायरिया में क्या होगा, किसी भी बेबी को स्टूल पास तो होगी विच इज 2 to 5 लूज स्टूल्स, 2 to 5 लूज स्टूल्स होंगे जो कि किस कलर के होंगे, ग्रीन कलर, ऑफेंसिव रहेंगे और म्यूकस प्रेजेंट रहेगा. सेकेंड पॉइंट विल बी वॉल्यूम, उसकी कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, डजंट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम. नेक्स्ट, इट में सबसाइड इन अ डे और 2, अगर माइल्ड है 1 दिन या 2 दिन के अंदर सबसाइड हो जाएंगे. 2 से बस उनको 2 to 5 लूज स्टूल्स होंगे जो ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ऑफेंसिव हो सकते हैं, म्यूकस प्रेजेंट हो सकता है, या फिर वन मोर पॉइंट विच इज नॉट एडेड इज मिल्क कर्डी, मिल्क कर्ड टाइप के भी स्टूल पास करेंगे. क्वांटिटी डजंट मैटर, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है. दिस इज ऑल अबाउट माइल्ड डायरिया. Coming on to the next, which is moderate diarrhea, which is number of loose stool is 10. Quantity you have to remember. Mild में 2 to 5 loose stools थी, moderate में number of loose stools is 10 or even more. इसमें क्या क्या सिम्टम होंगे चाइल्ड को, फीवर, इरिटेबल होगा बेबी, एनोरेक्सिक होगा और वॉमिटिंग भी होती है. एनोरेक्सिया तो हो ही रहा है और वॉमिटिंग भी हो रहा है. दे में हैव माइल्ड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जो है वो थोड़ी माइल्ड होगी, सीवियर स्टेज तक नहीं चले गई. दिस इज ऑल अबाउट मॉडरेट. व्हाट ऑल वी हैड सीन, लूज स्टूल है जो 10 या उससे ज्यादा हो सकती है, उसको क्या सिम्टम्स आएंगे मॉडरेट डायरिया के बेबीज को, फीवर है, इरिटेबल है, एनोरेक्सिक है और वॉमिटिंग है, और माइल्ड डिहाइड्रेशन बेबी में हैव. कमिंग ऑन टू सिवियर डायरिया, it may pass, baby may pass too many or even up to 100 stools within 24 hours. आपको ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, within 24 hours. खूब सारे स्टूल भी हो रहे हैं, बिकॉज मॉडरेट में हमने क्या देखा, 10 स्टूल या फिर उससे भी ज्यादा. अब इट कैन बी 10, 12, 15, 20 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बेबी. Similarly, in severe diarrhea, it may pass too many or even up to 100 stools. Importantly, you have to mention within 24 hours. Then severe vomiting is also present. Earlier आपने क्या देखा था moderate में, fever भी है, anorexic भी है, irritable भी है, vomiting भी है, but over here only severe vomiting will be there. And again fever, anorexia, irritability तो रहेगा ही, but vomiting will be severe. Coming on to one chart, you just have to see उसमें degrees of dehydration बताया है next chart में, just have to see and listen कि क्या क्या degrees है यहाँ. See, signs of various degrees of dehydration. Is it visible to everybody? Yes, ma'am. हाँ. So see, signs of dehydration. उसमें फिर mild है, moderate है and severe है. First of all, diarrhea. आपको 3 चीज देखनी है, very easily you can see. Ask, look and feel. 3 चीजें दिख रही है, ask, look and feel. फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क है, आस्क पूछना क्या क्या है आपको, देखना क्या क्या है और फील क्या क्या करना है. तो आस्क, लिसन एंड रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली. वेरियस डिग्रीज ऑफ डिहाइड्रेशन में क्या क्या मिल रहा है आपको, आस्क, लुक एंड फील. आस्क में पूछना क्या है आपको, डायरिया कितनी बार हो गई है, वॉमिटिंग कितनी बार हुई है कि नहीं है, थर्स्टी था, बेबी को प्यास लग रहा है या फिर नहीं, यूरिन पास हुआ है या फिर नहीं. माइल्ड में आपको कैसे पता चलेगा डायरिया है, लेस देन 4 स्टूल्स एक दिन में. मॉडरेट में सिमिलरली 4 to 10 स्टूल्स पर डे में. सिवियर में मोर देन 10 और 100 में भी कितने दिन में हुआ. वॉमिटिंग में माइल्ड डिहाइड्रेशन में दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉमिटिंग और एल्स नहीं होती है. मॉडरेट में इट कैन बी सेम, मतलब हुई है और कम भी हुई है या फिर नहीं भी हुई है.
सिवियर डिहाइड्रेशन में दे विल बी हैविंग वॉमिटिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, बार बार हो रहे हैं बिकॉज इट इज सिवियरली वॉमिटिंग, दे विल बी फॉर्मिंग वॉमिटिंग एवरी टाइम, दे विल बी गोइंग एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज अबाउट थर्स्ट, इसको भी पूछना है आपको, कितना लगा माइल्ड डिहाइड्रेशन में? मोर देन नॉर्मल, जितना नॉर्मली लगता है उससे थोड़ा सा ज्यादा। मॉडरेट में सेम, जितना लगता है उससे थोड़े से ज्यादा। सीवियर डिहाइड्रेशन में बेबी इज अनेबल टू ड्रिंक, ना तो वो बोल रहा है कि पीना है, और अगर पिला भी रहा हो तो लिटिल अमाउंट इट इज द बेबी इज ड्रिंकिंग, और बाकी छोड़ दे रहे हैं। यूरिन में यू हैव टू आस्क, माइल्ड में बताएंगे नॉर्मल यूरिन हो रही है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में अब जितना पानी पियेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट होगी ना, सो मॉडरेट में उतना ही है, स्मॉल होगी या तो फिर डार्क कलर ऑफ यूरिन होगी। और सीवियर डिहाइड्रेशन में 6 आवर्स तक मिनिमम कोई यूरिन पास नहीं होगा। You all are getting? Ask, look and feel. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड इज लुक। लुक में क्या देखना है आपको? कंडीशन, टीयर्स, आईज, माउथ एंड टंग एंड ब्रीदिंग। देखना है क्या है? कंडीशन। माइल्ड डिहाइड्रेशन में बेबी कैसे दिख रहा है? अलर्ट। आप बेबी के नेम लेंगे और वी विल शुक द बेबी, बेबी विल बी रिस्पॉन्डिंग। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में यू विल सी व्हाट? बेबी इज अनवेल, बेबी विल बी स्लीपी ऑल द टाइम, और बेबी विल बी इरिटेबल। आप बेबी से इंटरैक्ट भी करेंगे तो बेबी विल नॉट बी इंटरैक्टिंग और रिएक्टिंग मच। नेक्स्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन में आप कंडीशन देखेंगे तो वेरी स्लीपी, खूब सो रहे हैं, अनकॉन्शियस भी हैं, और फ्लॉपी भी है, या फिर उन्हें फिट्स आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट टीयर्स, माइल्ड डिहाइड्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि वाटर क्वांटिटी बॉडी में है तो टीयर्स भी निकल रहे हैं। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में टीयर्स का क्या होगा? एब्सेंट हो जाएंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन आगे बढ़ गई है, और सीवियर में तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकते, तो दैट विल बी अगेन एब्सेंट। टॉकिंग अबाउट आईज, आईज नॉर्मल रहेंगे मॉडरेट माइल्ड में, मॉडरेट में सनकिन आईज रहेंगे, और सीवियर में वेरी सनकिन। सनकिन आईज मीन्स व्हाट? सोई सोई वाली आंख, आधा सोलन है आधा सोया वाला है, ऐसे देख रहे हैं दैट टाइम में। माउथ एंड टंग, mild dehydration में it will be wet, moderate dehydration में it will be dry, severe dehydration में it will be very dry. Talking about breathing, देखने से baby will be breathing normally in mild dehydration. Moderate dehydration में baby will be breathing faster than the normal, and severe dehydration में baby will be breathing very fast and very deeply, baby will be breathing. Talking about feel, स्किन आफ्टर फीलिंग इन माइल्ड डिहाइड्रेशन, स्किन में जब आप पिंच करते हो तो इजीली चले जाएगा वापस स्किन, और अगर मॉडरेट को इफ यू विल बी पिंचिंग, धीरे धीरे वो वापस अपने ओन पोजीशन में जाएंगे। सीवियरली डिहाइड्रेशन को पिंच करोगे तो बहुत ही स्लो मोशन में वापस से जाएंगे अपने जगह में। टॉकिंग अबाउट पल्स, माइल्ड डिहाइड्रेशन इट विल बी नॉर्मल, नॉर्मल पल्स जितना अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द बेबी उतना नॉर्मल होंगे। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में नॉर्मल से थोड़े से ज्यादा, और सीवियर डिहाइड्रेशन में खूब फास्ट, या तो किसी बेबी में खूब वेरी फास्ट हो जाएगा, किसी बेबी में वीक होगा, किसी बेबी में थ्रेडी पल्स होगा। टॉकिंग अबाउट फॉन्टेनल्स इन इन्फेंट्स, माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल रहेगा, मॉडरेट में अगेन संकिन रहेगा, और सीवियर डिहाइड्रेशन में वेरी संकिन, थोड़ा सा बल्ज्ड अप और सोलन रहेगा, और सीवियर में बहुत ज्यादा सोलन और बहुत ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन में मिलेगा। आई होप यू ऑल आर familiar with this chart now. Do remember this chart very importantly. Ask, look and feel, 3 चीजें आपको देखनी होगी। Talking about the next, diagnostic evaluation, उसमें हम देखेंगे पहले हिस्ट्री। एज वेरी इंपॉर्टेंटली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप 2 चीज नर्सिंग प्रोफेशन में जरूर से देखेंगे, दैट विल बी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में नर्स का ड्यूटी क्या होगा, क्या क्या पूछना है? नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूल पास्ड पर डे, एक दिन में कितनी बार स्टूल पास किया और कैसा स्टूल था, दैट इज डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूल पास नॉर्मली, अब डायरिया हो गया है तब कितना स्टूल पास किया है बेबी ने और इन्फेंट ने, और जब डायरिया नहीं हुआ था उसके पहले कैसा स्टूल पास करता था बेबी, दैट यू हैव टू कीप अकाउंट ऑफ बोथ। नेक्स्ट इज बॉडी वेट, डायरिया होने के पहले कितनी थी और बॉडी वेट अभी कितनी है, दैट यू हैव टू टेक।
नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ फीवर, एब्डोमिनल पेन, फीवर है, एब्डोमेन पेन है, एब्डोमेन रिजिडिटी है, ये सब यू हैव टू मेंटेन। नेक्स्ट इज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक कितना है अभी, कितना था पहले। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इट इज अगेन in continuation with fluid intake because frequency of urination is important because जितना पिएंगे उतना ही they will be excreting, तो और कितनी frequency से they are urinating, कितनी बार हो रहा है कितनी बार नहीं हो रहा है, that is all again under history. History is clear, I hope. Talking about physical examination, डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए फिजिकली एग्जामिन करते हैं, लाइक दिस चार्ट विच वी हैड सीन. इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर विल बी स्किन, विच इज द फील पॉइंट स्किन में. जब भी पिंच करते हैं, अगर किसी बेबी को माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो वो वापस से उसकी स्किन अपने पोजीशन में चले जाएंगे. किसी बेबी को मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, वो टाइम में वो थोड़ा सा स्लो वापस जाएंगे पिंच करने के बाद. जब भी आप छोड़ देंगे तो सिवियर डिहाइड्रेशन में इफ यू आर पिंचिंग तो वो बहुत स्लो जाते हैं. बट दिस पिंच टेस्ट इन अडल्ट आपने किया होगा तो आई डोंट नो, बट अगर आप करेंगे तो यू कैन पिंच एनीवेयर. बट इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स इफ यू आर पिंचिंग, इट इज गुड टू पिंच इन द एब्डोमिनल एरिया ऑफ द बेबी. एब्डोमेन में आपको पिंच करनी है और कोई एरिया में इट इज नॉट फीसिबल फॉर द बेबी टू बी पिंच्ड. एब्डोमेन में करके देख सकती हैं आप पिंच टेस्ट. नेक्स्ट इज, तो उससे डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन पता चल सकती है आपको. नेक्स्ट इज स्टूल एग्जामिनेशन, किस चीज के लिए एग्जामिन करोगे आप स्टूल? फॉर वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी कितना है, ज्यादा है कम है, कंसिस्टेंसी कितनी है, कैसे कंसिस्टेंसी है उसकी, कलर क्या है, पीएच क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ब्लड प्रेजेंट है या फिर नहीं, ये सब यू हैव टू चेक. नेक्स्ट इज स्टूल कल्चर. स्टूल कल्चर पहले बात तो क्यों करते हैं हम? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है डायरिया के लिए? अभी हमने आपको बता दिया, रोटा वायरस था, एडिनो वायरस था, ये सारे लोग में से कौन सा एक्चुअली है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासिटिक है, कौन सा टाइप है, दैट विल बी हेल्पफुल इन स्टूल कल्चर. स्टूल कल्चर इसलिए कर रहे हैं. देन ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में क्या कर देंगे? हेमाटोक्रिट टेस्ट, एलिवेटेड बन विच इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, WBC काउंट, ये सब. तो हेमाटोक्रिट में क्या होंगे? एलिवेटेड हेमाटोक्रिट रहेंगे. अगर डिहाइड्रेटेड बेबीज हैं उनमें एलिवेशन रहेगा, मतलब बढ़ के रहेगा हेमाटोक्रिट लेवल. टॉकिंग अबाउट बन एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रहेगा. देन WBC इधर नॉर्मल होगी या फिर एलिवेटेड होगी. वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स आपके जो है WBC जो है, WBC क्या होंगे? या तो नॉर्मल होंगे या फिर एलिवेटेड रहेंगे. अंडरस्टूड? टिल हियर वी हैव सीन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. Next, moving on further to the management, which is also divided into 5 points. First point is replacement of fluids. Next is administration of prescribed drugs. Next is maintenance of nutritional status, prevention of diarrhea, and educating parents, in which all the points are important. Basic and the main important point which plays a vital role is replacement of fluids, administration of प्रिस्क्राइब ड्रग्स, बिकॉज इसको सब पॉइंट्स भी है. फ्लूइड रिप्लेसमेंट को और रिप्लेसमेंट्स ऑफ फ्लूइड को सब पॉइंट्स है, दैट इज व्हाई इट इज लिटिल इंपॉर्टेंट. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, दिस मैनेजमेंट वी विल बी सीइंग इन डिटेल नाउ. फर्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेसमेंट कैसे होगी? बाय ORS और ORT, विच इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. सबसे पहले इंपॉर्टेंटली, कभी भी डायरिया हो रहा है तो बेबीज को आप क्या दे देते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. इट इज व्हाट? इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट फ्लूइड्स इन डिहाइड्रेशन पेशेंट्स चिल्ड्रन. सबसे पहले आपको फ्लूइड जो लॉस हो गई उसको रिप्लेस करना है. रिप्लेस कैसे करोगे? ORS देके, विच इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. T लगा है तो थेरेपी, S लगी है तो सोल्यूशन. ओरल, the previous slide it is ORT, which is oral rehydration therapy. Over here it is written ORS, which is oral rehydration solution. So oral rehydration solution, in other words we call as ORS, can be used to prevent development of dehydration. डिहाइड्रेशन जब हो गई है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या देते हो? ORS. और बहुत सारे लोगों में लाइफ बचाने का काम करता है.
होममेड सोल्यूशन भी आप यूज कर सकते हैं और पैक्ड स्टफ भी आप यूज कर सकते हैं, बट इफ यू आर यूजिंग होममेड सोल्यूशन उसकी वे है बताने की, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी. Homemade solution that can be used for oral rehydration are salted rice water, जो चावल का पानी, then salted pulses which is दाल का पानी, vegetable water सब्जी का पानी, and chicken soup, चिकन का सूप बनाकर भी you can give if the child is above 6 years of age, 6 months of age, sorry. नेक्स्ट इज अगर ORS दे रहे हो घर में बना रहे हो तो वो टाइम में ORS कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कभी भी 1 लीटर ऑफ वाटर ले लो आप, उसमें 3 फिंगर पिंच ऑफ सॉल्ट दैट इज 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट आप डाल दो और 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर विच इज 18 ग्राम्स. इसको मिक्स करना है. पहले तो ल्यूकवार्म वाटर आपको लेना है 1 लीटर ऑफ वाटर. Lukewarm water में you have to mix these things, that is 3 finger pinch of salt that is 3 grams as well as 2 tablespoons of sugar that is 18 grams. इसको मिक्स कर जब पूरा सब डिसॉल्व हो जाएगी sugar as well as salt, comparatively salt will dissolve faster and sugar will take time. जब पूरी dissolve हो जाएगी that is the time you are supposed to give like कटोरी spoon feeding I taught you all. That way only कटोरी spoon से you are supposed to feed the baby. अब कब देना है? दिन भर देते ही नहीं रहना है. सोल्यूशन शुड बी गिवन टू द चाइल्ड आफ्टर एवरी लूज स्टूल. जब भी लूज हो जाएगा, स्टूल हो गया, अगर पास आउट हो गया और लूज स्टूल ही हुआ है, दैट पर्टिकुलर टाइम में आपको एडमिनिस्टर करनी है. कैसे एडमिनिस्टर करनी, वी विल बी सीइंग इन द कमिंग स्लाइड्स. कैसे कैसे करनी है, पार्ट्स में डिवाइडेड है वो. नाउ management of children with diarrhea depends upon the severity of dehydration. कौन सी severity की plans है? Plan A, B and C. So that is treatment plan A, treatment plan B and treatment plan C. This is you should not get confused, that is why I am repeating. Management we will be seeing in 5 headings, 4 or 5 headings, जिसमें we are seeing replacement of fluids. अभी हमने जितना भी पढ़ दिया है that is under replacements of fluids only. तो ये ORT थेरेपी, ORS थेरेपी एंड मैनेजमेंट, ये यहाँ ट्रीटमेंट प्लान A, B, C, ये जब तक C खत्म नहीं हो जाएंगे दिस विल बी इंक्लूडेड अंडर रिप्लेसमेंट्स ऑफ फ्लूइड. कमिंग ऑन टू ट्रीटमेंट प्लान A. अब ये देखो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में प्लान A है. प्लान A में क्या है, आपको एज डिवीजन है, कितनी ORS देनी है एक स्टूल के बाद और कितनी बनानी है, दैट इज गिवन. एज मीन्स लेस देन 24 मंथ्स, 1 साल से कम की बच्चा अगर है तो आपको कितनी, उसको एक स्टूल के बाद कितनी ml देनी है, 50 to 100 ml you are supposed to administer to the kid, to the particular infant. And amount of ORS to be made, उस बच्चे के लिए जो 1 year से कम का है उसको हम कितना दे देंगे, बनाएंगे कि इतना 500 ml पर डे बनाना है. अगर 1 day में खत्म नहीं हो रही है then you are not supposed to reuse it the next day. Although you have maintained full precaution, साफ से रखा है, कवर करके रखा है, but no, you are supposed to discard it. लेकिन बेबी को नहीं दे देंगे. नेक्स्ट इज 2 to 10 years of age. अगर 2 years से 10 years के बेबी को अगर कभी डायरिया हो रही है वो टाइम में आप कितना बनाएंगे, 1000 ml पर डे बनाएंगे, बट देंगे कितना, 100 to 200 ml ही दे देंगे. नेक्स्ट इज मोर देन 10 years ऑफ एज का बेबी है, जितना पी सकते हैं उतना पिला देंगे, लेकिन 2000 ml पर डे बनाएंगे. 2000 ml बनाना है यानी कि 2 लीटर बनाना है आपको, लेकिन पिलाना उतना ही है जितना पी सकते हैं. इतना नहीं करना है कि इतना बना दिया वेस्ट नहीं करो और पी लो सब. यू डोंट हैव टू डू दैट. You just have to maintain that जितना बनाया है उतना रखा है, and how much that particular kid can drink, they can drink. This is all about treatment plan A, which involves less than 24 months of baby infants, 2 to 10 years and more than 10 years. Moving on to treatment plan number B, which stays oral rehydration therapy. उसमें एज है till 15 years or more, और कितना क्वांटिटी और कितने ग्लास के अकॉर्डिंग देनी है, एंड प्लस वेट के अकॉर्डिंग यू आर सपोज टू गिव. लाइक लेस देन 4 months का अगर इन्फेंट है उसमें वेट लेस देन 5 kg है तो आपको कितनी ORS देनी है, 200 to 400 ml. और ग्लास से अगर मेजर करोगे तो 1 to 2 ग्लास. दिस इज पर डे का, पर डे में देना है, नॉट आवर्स. दिस इज पर डे, एक दिन में कितना देना, 24 hours में ऑल राउंड द क्लॉक. 4 to 12 months
के में कितना है, अगर वेट है 5 to 8 kg तक होना है, नहीं है तो आपको देन यू हैव टू मॉनिटर। देन कितनी सोल्यूशन देनी है, 400 to 600 ml और 2 to 3 ग्लास पर 24 आवर्स। 1 to 2 years है साइमल्टेनियसली, तो उनकी वेट 8 to 11 kg, 600 to 800 ml they have to give and 3 to 4 glasses with says. Simultaneously 2 to 4, 5 to 14 and 15 or more. Like this you are supposed to remember and you are supposed to write. Everybody is getting and everything is getting cleared. If you all have any doubt, please stop me in between. Akansha, any doubt you have? Y'all can hear me? Ajay, you can hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are listening. हाँ तो then speak up. No, you all are not saying anything, as in sleeping. Now coming on to the next, which is plan C. उसमें क्या है, IV फ्लूइड थेरेपी देते हैं जिनको बहुत ज्यादा सीवियरली डिहाइड्रेटेड बेबीज है, उनके लिए प्लान सी है, विच आर लेस देन 12 मंथ्स ऑफ एज। उसको पहले कैसे देना है और बाद में कैसे देना है। पहले कैसे देंगे, 30 ml पर kg इन एन आवर। बेबी का वेट के हिसाब से वी विल सी, अगर पल्स वीक होती है तो हमें रिपीट करना है, फिर से देना है ये इतना ही अमाउंट नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर। उसके बाद 5 घंटे के अंदर 70 ml पर kg दे देना है। इफ द बेबी इज 12 मंथ्स अप टू 5 years, अगर 12 मंथ्स का है और उससे लेकर 5 साल तक के बच्चे को कितना देना है आपको, पहले आधे घंटे में 30 ml पर kg उसके वेट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद 2.5 घंटे तक 70 ml पर kg। So this was all about treatment plan, which was under management of children with diarrhea depending upon the severity of dehydration. Severity कितनी है उसके हिसाब से we have divided plan A, B and C. We have seen simultaneously plan A, plan B and plan C. Next point, as I told you all, ये सारा कुछ plan A में है, means point 1 में है, replacement of fluids. Coming on to the next point, which is administer the prescribed drugs. कौन कौन सी ड्रग्स हैं प्रिस्क्राइब, उनको एडमिनिस्टर करना है। फॉर इंस्टेंस एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कौन सी है, पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे केसेस और बहुत सारे बेबीज को एंटीबायोटिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। डू रिमेम्बर, उधर स्लाइड में नहीं लिखी है बट आई एम टेलिंग, मोस्ट केसेस ऑफ डायरिया, जिनको भी डायरिया हो रही है, दे डू नॉट रिक्वायर एंटीबायोटिक थेरापी। लेकिन उसमें क्या होती है, अगर बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोअल डायरिया है तब हम डायरियल एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। और जिनको भी बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल डायरिया होती है उनको ब्लड और म्यूकस एंड स्टूल प्रेजेंट रहता है, एज वेल एज फीवर भी, हाई ग्रेड फीवर दे गेट। टॉकिंग अबाउट बाइंडिंग एजेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स कौन से कंपाउंड हम देते हैं, आई होप यू ऑल माइट हैव heard this before, बिस्मिथ कंपाउंड्स। बिस्मिथ कौन होते हैं, ऑक्साइड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जीआई डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या ड्रग वी आर गिविंग, पेप्टोबिस्मॉल। पेप्टोबिस्मॉल क्या है, डायरिया को करेक्ट करने के लिए देते हैं। एंड व्हाट इट डज, स्टमक को आपके प्रोटेक्ट करता है, स्टमक को एज वेल एज जो आपका फूड पाइप है, फूड पाइप के लोअर एंड को भी बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है। स्टमक में जो एसिड कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, स्टमक को एज वेल एज लोअर पार्ट ऑफ द फूड पाइप को प्रिवेंट करके रखता है। क्यों, क्योंकि ये इट ऑल्सो एक्ट एज व्हाट यू कॉल माइल्ड एंटासिड, एंटासिड की तरह काम करता है। एंटासिड का काम क्या होता है, स्टमक एसिड जो बहुत सारी प्रेजेंट होती है उनको कम करना या फिर उनको डिस्कम्फर्ट से बचाने का काम करता है ये पेप्टोबिस्मॉल। तो पेप्टोबिस्मॉल हम देते हैं, दैट इज अ बिस्मिथ कंपाउंड। नेक्स्ट इज एंटी मोटिलिटी एजेंट, जो अभी वी हैड स्टडीड इन साइन एंड सिम्टम ना, मोटिलिटी ज्यादा हो रही है, और इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन में भी हमने पढ़ा था मोटिलिटी डायरिया। तो उसमें मोटिलिटी को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, लोपिरामाइड दे रहे हैं। लोपिरामाइड क्या कर रही है, इट इज ट्रीटिंग और एल्स क्या कर रही है, रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया।
जितनी फ्रीक्वेंसी से और ये जितने ड्यूरेशन से डायरिया हो रही है उसको वो कम कर देती है। टॉकिंग अबाउट एंटी सिक्रीटरी एजेंट, सिक्रीटरी हमने अभी बता दिया आपको। सिक्रीटरी क्लासिफिकेशन में एक और क्लासिफिकेशन में सिक्रीटरी थी, क्लासिफिकेशन में सिक्रीटरी क्लासिफिकेशन। तो एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स में कौन कौन से दे रहे हैं हम, एस्पिरिन दे देंगे और क्लोप्रोमाजीन दे देते हैं। ये दो एजेंट्स यू आर गिविंग इन एडमिनिस्ट्रिंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, दैट इज द सेकंड पॉइंट। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट व्हिच इज न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेनेंस। सो मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, कैसे मेंटेन करेंगे उसको, पहले तो बेबी को फीड करना है, जिससे क्या होगा, फीड करेंगे तो क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएंगे उनके न्यूट्रिशनल, जो प्रिवेंट्स द डिटीरिएशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनकी स्टेटस पर्टिकुलरली मेंटेन रहेगी और डिटीरिएट और कम नहीं हो जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ऐसे मेनी पीपल, मेनी मदर्स विल आस्क, स्पेशली प्राइमरी मदर्स विल आस्क कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ओआरएस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यू हैव टू टेल ब्रेस्ट फीडिंग टू बी कंटिन्यूड अलोंग विद ओआरएस, ओआरएस चल रही है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग दे देना है। सॉफ्ट एनर्जी रिच फूड शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। सॉफ्ट एनर्जी रिच फूड्स कौन से होंगे, खिचड़ी और राइस, एकदम जो बिल्कुल पिच पैच राइस होता है, एकदम कि मुंह में जाए और मेल्ट हो जाए। और एल्स मिल्क दे सकते हैं, मैश करके पोटैटो दे सकते हैं, मैश करके बनाना दे सकते हैं। these all come under soft energy food. Then avoid food with high fiber content, जिस फूड में भी फाइबर ज्यादा होगा वो बच्चों को नहीं देना है। फॉर इंस्टेंस अगर बेबी है, टॉडलर एज ग्रुप या फिर टॉडलर से भी बड़ा हो गया, उनको फाइबर कंटेंट नहीं देना। फाइबर किस में होती है, रफिज फूड्स या फिर फाइबर फूड्स क्यों नहीं देना, उससे डायरिया जल्दी हो जाएगा। फाइबर रिच लाइक स्प्राउट्स जो आप खाते हो, स्प्राउट कर कर, दाल स्प्राउट कर कर खाते हो, ऐसा कोई भी सामान जिसमें हाई फाइबर है, फाइबर रिच डाइट है, वो नहीं दे देना है, बिकॉज वो डायरिया का रिड्यूस तो नहीं करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। स्पाइसी फूड भी कम करना है, जिससे कि स्टमक लाइनिंग जो है, म्यूकोजल लाइनिंग्स है, वो इरिटेट ना हो। जिंक सप्लीमेंटेशन भी देना है, जिंक सप्लीमेंटेशन टू बी गिवन वेरी इंपॉर्टेंटली। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज एजुकेट द पेरेंट्स रिगार्डिंग द प्रिवेंशन। अब ये प्रिवेंशन और एजुकेशन एक ही पॉइंट में आ गई है। वी हैड 5 पॉइंट्स, उसमें से फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मर्ज हो गई है, दैट इज एजुकेटिंग द पेरेंट्स एंड प्रिवेंशन के बारे में भी उन्हें बताना है। तो पहले तो उन्हें बताना है बॉटल फीडिंग इन इन्फेंट को पहले तो आपको अवॉइड करना है, कटोरी स्पून फीडिंग को एंकरेज करना है। बॉटल फीडिंग क्यों कम करनी है, उससे इन्फेक्शन हो रही है, हो सकता है, और जिसकी वजह से बेबी डायरिया में जा रहा है। सो कटोरी एंड स्पून फीडिंग देनी है। फूड हाइजीन को मेंटेन करना है, कोई खुला खाना ऐसे रखकर बेबी को नहीं दे देना है। क्लीन पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज करना है, कुकिंग के लिए और किचन पर्पस में, किचन में जो भी काम हो रहा है रिलेटेड टू बेबी और इवन रिलेटेड टू द मदर एज वेल, they are supposed to make sure that it is clean to be used. Food should be kept covered क्यों करना है हमको food, to protect it from any sort of dust and flies. उसके बाद eat freshly cooked food, रखा रखा खाना नहीं खाना है, या फिर खाना सुबह बना दिया रात तक वही खा रहे हैं, dish not eat. जो भी fruits and vegetables होते हैं कंज्यूम करने से पहले उसे धोकर खाना है, ये वहां पर नहीं है, आई एम टेलिंग लाइक दैट ओनली, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द पॉइंट। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब भी आप यूज करते हैं तो कंज्यूम करने, खाने से पहले यू आर सपोज टू वॉश देम अप एंड देन यूज। जो भी पीने का पानी इफ दे आर यूजिंग, उसको पहले तो क्लीन कंटेनर में रखना है, दूसरा कवर करके रखना है, और उसमें जब भी आप निकाल रहे हैं तो हैंड डिप करके नहीं निकालना है। ईदर यू शुड हैव अ टम्बलर और यू शुड हैव समथिंग टू बी टेकन आउट फ्रॉम दैट। चिल्ड्रन अगर बड़े हैं, फॉर इंस्टेंस टॉडलर्स भी हैं, तो स्टिल दे आर सपोज टू आस्क टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर ईटिंग द फूड, आफ्टर ईटिंग द फूड, टॉयलेट जाने आने के पहले और बाद पे, ये सब यू आर सपोज, यू ऑल शुड एजुकेट द पेरेंट्स स्पेशली। उनको बोलना है कि ओपन स्पेसेस में जाकर स्टूल पास नहीं करना है, वॉशरूम टॉयलेट जो है वहां पर जाकर यूज करना है। दीज ऑल आर एजुकेटिंग द पेरेंट्स रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। Understood? Any doubt anybody is having till here? Y'all are free to ask. Please do ask. If any doubt, if y'all are having, y'all are free to ask. Conclusion it is that what is diarrhea and how it is being transmitted.
nursing process coming on to this. Yesterday I told you all about the diagnosis and all. Today I'm not telling. It's an assignment for you all that you are supposed to write a care plan on a child suffering with diarrhea. So now, till now you have two. Yesterday I had given on failure to thrive. Today I'm giving it on diarrhea. Any confusion you can ask me tomorrow before starting the class. Any doubt you all can ask. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Any Donna, any doubt you are having? No, ma'am. Any doubt you all can please ask. Ravi, you are still there? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay. Then we should end the class before. So you all have no doubt in this topic, no? Disorders of the GI में, that was diarrhea. No doubt in this? No, ma'am.